Hello students, let's learn a content. Today we are going to learn the poem The Road Not Taken by Robert Frost, which has been prescribed in class 9 English textbook Beehive. First of all, let us know something about the author. Robert Lee Frost was an American poet. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life. A popular and often quoted poet, Frost was honored frequently during his lifetime. His work frequently employed themes from the early 1900s rural life in New England. He usually wrote in simple language but had a deeper meaning. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट थे और वो जो भी लिखते थे उसमें वो ग्रामीण जीवन के बारे में लिखते थे और वो बहुत ही फेमस पोएट थे और कई बार उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं। ज़्यादातर जो उनका वर्क होता था उसका थीम जो वो लेते थे वो न्यू इंग्लैंड की रूरल लाइफ से होता था और वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे, लेकिन उनकी राइटिंग्स में बहुत ही डीप मीनिंग होता था। उनके कुछ फेमस पोएम्स हैं जैसे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल। This poem is taken from a book called Mountain Interval, work by Robert Frost. Frost wrote the poem as a joke about his friend. This poem beautifully explains us about the reality of life. This is a very famous poem, but at the same time tricky too. फ्रॉस्ट की एक किताब है जिसका नाम है माउंटेन इंटरवल और उसमें उनकी पोइट्री के कलेक्शन है जिसमें कि पहला पोएम द रोड नॉट टेकन है और ये पोएम उन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर एज जोक लिखा था और इस पोएम में उन्होंने बहुत खूबसूरती से जो सच्चाई होती है लाइफ की उसके बारे में हमें बताया है। ये बहुत ही फेमस पोएम है लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही ट्रिकी भी है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warmed then really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So you can see that this poem is following a rhyme scheme. Rhyme scheme gives a musical effect to the poem. In the first stanza, you see the last word of the first line, that is would. Then in the third and fourth line, the words are stood and could. तो ये तीनों वर्ड्स आपको सुनने में एक जैसा लग रहा होगा। उसके बाद second line and last line in the first stanza the words are both and undergrowth. ये दोनों वर्ड्स आपको सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर राइम स्कीम है ए बी ए बी। तो सेम पैटर्न इस पूरी पोएम में पोएट ने फॉलो की है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इस पोएम में राइम स्कीम है। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। द पोएम ओपन्स विद द स्पीकर टेलिंग अस ऑफ हाउ ही वंस स्टूड बिफोर टू डाइवर्जिंग रोड्स, trying to decide which road to continue. In order to avoid making a mistake of choice, the speaker took a long time thinking over his decision and even tried to see where one of the roads lead.
However, this was not possible as the road bent and the view was blocked by bushes on its side. यहाँ पर कवि एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे कि उनके सामने दो चॉइस है। यहाँ पे रोड हम बोल सकते हैं कि जो जर्नी ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन की यात्रा है, ये उसको सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ पे रोड एज मेटाफर यूज किया गया है। मेटाफर क्या है? व्हाट इज मेटाफर? Metaphor is a word or phrase for one thing that is used to refer to another thing in order to show or suggest that they are similar. एक चीज को हम दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से, जब उनमें जो क्वालिटीज है वो सिमिलर हो, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर हम मेटाफर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो कि दो डायरेक्शन में एरो बनी हुई है। तो ये जो दो डायरेक्शन है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम यहाँ पे फॉर्क बोल रहे हैं। एंड फॉर्क इज रिप्रेजेंटिंग द चॉइस, जब हमारे पास जो विकल्प होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्क जो है एज मेटाफर यूज हो रहा है एंड दैट इज डिस्क्राइबिंग चॉइस। इन अ येलो वुड, येलो यहाँ पे ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ के मौसम को दिखा रहा है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पोएट है वो अपने यंग एज में नहीं है, बल्कि थोड़े उम्रदराज हो चुके हैं। वुड यानी कि फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, बल्कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सुनसान है। तो पोएट वहाँ पे अकेले हैं और उन्हें डिसीजन लेना है उस दो रास्ते के बीच में, और उनके पास कोई नहीं है उन्हें सजेशन देने के लिए। और वो अपने आप को एज ट्रैवलर, यात्री समझ रहे हैं और सॉरी कर रहे हैं कि मैं दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता। यानी कि उन्हें एक डिसीजन लेना है और एक रास्ते को ही चुनना है। और उस जगह वो खड़े होकर बहुत देर तक देख रहे हैं जहां तक उनकी नजर जा सकती है, और जहां पर वो रास्ते बेंट हो रहे हैं। बेंट मतलब मुड़ना। इन द अंडरग्रोथ, और वहां पे झाड़ियां हैं जिसकी वजह से फिर उन्हें आगे नहीं दिखाई दे रहा है। सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती है कि हमारे पास चॉइसेस होते हैं और वहां पे हमें डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट स्टैंजा। The speaker selects the road that appears at first glance to be less worn and therefore less traveled. His choice suggests that he has an independent spirit and does not wish to follow the crowd. After a moment, he concludes that both roads are about equally worn. थोड़ी देर के बाद पोएट एक रास्ते को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, जो कि उन्हें पहले नजर में ऐसा लगता है कि उस रास्ते पे बहुत सारे लोग नहीं चले हैं। और वो चॉइस उनको क्या लग रहा है, वो रास्ता कैसा उनके लिए? फेयर, मतलब अच्छा है, नाइस है। यहाँ पर क्लेम का मतलब दावा है, तो पोएट ये दावा कर रहे हैं कि उस रास्ते पे बहुत लोग नहीं चले हैं। और उन्हें लगता है कि वो रास्ता कैसा है? ग्रासी है एंड वांटेड व्यू, मतलब उस रास्ते पे चूंकि लोग नहीं चले इसलिए घास है और वो घिसना चाहती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये दोनों रास्ते सेम हैं और इक्वली वर्न हुए हैं। पोएट के इस डिसीजन से हमें ये भी दिखता है यहाँ पे कि वो कॉन्फिडेंस में है अपने आप में, कि अपना खुद का डिसीजन लेना। ये नहीं है कि वो दूसरों का देखा देखी करके उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ थर्ड स्टैंजा। लीव्स कवर बोथ रोड्स इक्वली। नो वन ऑन दिस मॉर्निंग हैज येट टेकन आइदर रोड, फॉर द लीव्स लाई अनडिस्टर्ब्ड। द स्पीकर रिमेन्स कमिटेड टू हिज डिसीजन टू टेक द रोड ही हैड प्रीवियसली सेलेक्टेड, saying that he will save the other road for another day. He observes, however, that he probably will never pass this way again and thus will never have opportunity to take the other road. दोनों रास्ते पे एक ही तरह से पत्ते बिखरे हुए हैं और उस सुबह
दोनों ही रोड्स पे पोएट बोलते हैं कि जो पत्ते हैं वो ऐसे ही हैं, उन्हें किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है। फिर भी पोएट जो है अपने डिसीजन पे अडिग हैं जो उन्होंने पहले सेलेक्ट किया है, और वो सोचते हैं कि वो जो दूसरा रास्ता है वो दूसरे दिन के लिए रखेंगे, लेकिन फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि दोबारा वो उस रास्ते पे नहीं जा सकते हैं, उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा उस रास्ते पर जाने का। ट्रॉड इन ब्लैक मतलब होता है कि पैरों से कुचल देना। मीनिंग ऑफ फोर्थ स्टैंजा। In years to come, the speaker says he will be telling others about the choice he made. While doing so, he will sigh either with relief that he made the right choice or with regret that he made the wrong choice. Whether right or wrong, the choice will have had a significant impact on his life. लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कर रहे हैं? साई। साई का मतलब होता है लंबी सांस लेना। तो साई के साथ वो अपने चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उनका साई है ये हमें नहीं पता चल रहा है कि वो खुश होकर या फिर दुखी होकर या फिर रिलीफ मतलब इत्मीनान से वो साई कर रहे हैं। अपने डिसीजन को लेके वो क्लियर नहीं है कि वो खुश हैं या दुखी हैं, लेकिन ये हमें ज़रूर पता चलता है कि जब हम डिसीजन ले रहे हैं तब हमें फ्यूचर नहीं पता होता है कि आगे चल के हमारा डिसीजन सही होगा या गलत होगा। जब वो समय बाद का आता है तब हम जान पाते हैं कि हमारा डिसीजन सही था या गलत था। So what is the message conveyed by the poet in this poem? In life we face many different choices. There will be options that will be popular with a lot of people and options that people will not choose. हमारे लाइफ में कई बार हमारे सामने ऐसे सिचुएशन आएंगे जब हमारे पास अलग अलग चॉइस होंगे, विकल्प होंगे। कुछ चॉइस ऐसे होंगे जो बहुत लोग पसंद करते हैं और कुछ चॉइस ऐसे होंगे जो बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं। Once we have made a decision, our path and therefore our future has been determined. We cannot go back and change the decisions we have made. और जब हम एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आगे चलकर हम उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझकर ही डिसीजन लेना होता है। सपोज अभी आप लोग क्लास 10 में जाओगे, उसके बाद जो सिस्टम हमारे हैं अभी तक जो चल रहा है अकॉर्डिंग टू डैट, 10th के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम्स होते हैं कि आप साइंस लोगे, कि आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे। अकॉर्डिंगली फिर आपका फ्यूचर में आपका कैरियर डिसाइड होता है। तो वही पॉइंट है जहाँ पे कि आपको डिसीजन लेना है, बाद में जाकर आप अपना चॉइस चेंज नहीं कर सकते हो। What are the literary devices used in this poem? First is metaphor. Metaphor is a word or phrase for one thing that is used to refer to another thing in order to show or suggest that they are similar. For example, road, that is paths we take in our life. Fork is the choice. Yellow is representing light, hope and promise. Morning, a new beginning and the endless possibilities that the day ahead has to offer. सुबह का जो समय होता है वो ये दर्शा रहा है कि हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं हैं। ये एक नई शुरुआत को दर्शा रहा है। वर्ड्स एन इमेज ऑफ ए क्वाइट डेजर्टेड प्लेस वेयर द स्पीकर इज लेफ्ट अलोन टू डिसाइड। ठीक है, एक शांत जगह को दिखा रहा है जहाँ की स्पीकर यानी कि पोएट अकेले हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। Alliteration, it is the repetition of a consonant sound at the beginning of words. For example, wanted, fear. यहाँ पे आप देखोगे कि W का repetition हो रहा है। Personification, it is when you assign the qualities of a person to something that isn't human or that isn't even alive, such as nature or household items. जो इंसान की जो क्वालिटीज है वो हम ऐसे चीज में दिखाएं जो कि
ह्यूमन नहीं है या फिर वो अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, जैसे कि नेचर हो गया और हाउसहोल्ड आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। वांटेड वियर जो है वो इंसान की जरूरत होती है, ह्यूमन नीड है, जो कि हम यहाँ किस में दिखा रहे हैं, ग्रास में। नेक्स्ट इज एनाफोरा। इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर सक्सेसिव क्लाउजेस और सेंटेंसेस। यहाँ पे आपके सामने 3 लाइन है और तीनों ही लाइन के बिगनिंग में यानी कि शुरुआत में आप देख रहे हो कि एंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट इज एंटीथेसिस। It is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. जब एक ही सेंटेंस में हम 2 अलग बातों को रखते हैं ताकि और उनमें विरोधाभास दिख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ओह आई kept the first for another day. I doubted if I should ever come back. पोएट पहले तो वो रास्ते को दूसरे दिन के लिए रखते हैं, लेकिन बाद में वो बोलते हैं कि वो दोबारा कभी उस रास्ते पे नहीं जा सकते। तो दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। इमेजरी। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस और आइडियाज इन सच ए वे दैट इट अपील्स टू आवर फिजिकल सेंसेस। किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को ऐसे दिखाना जो हमारे फिजिकल सेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सेंसेस हो गया जैसे हमारा आईज हो गया, ईयर्स। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो रहा है, एक विजुअलाइजेशन हमारे आईज के थ्रू हो रहा है, तो इसे हम इमेजरी बोलते हैं। और इस पोएम में राइम स्कीम है ABAAB। Now let's discuss the questions and answers. Where does the traveler find himself? What problem does he face? The traveler finds himself standing on a fork in the path. He is in a problem as he must choose one path and is unable to decide which one to choose. ट्रैवलर एक रास्ते में फॉर्क के पास है और उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें एक रास्ता चुनना है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं 2 रास्ते में से कि वो किसको चुने। Is there any difference between the 2 roads as the poet describes them in stanza 2 and 3? The 2 paths were similar. In the beginning, the poet felt that one of them was grassy and had not been walked over by many people. But when he walked on it for some distance, he realized that it was like the other road. दोनों ही रास्ते क्या हैं, एक जैसे हैं। स्टार्टिंग में पोएट को फील होता है कि एक ग्रासी है और उस पर बहुत सारे लोग नहीं चले हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो दूसरे रास्ते की ही तरह है। In the last 2 lines of the poem, here again the poet talks of his initial decision when he thought that the roads were different and chose the one that had been walked over by a lesser number of people. Last 2 lines में अपना जो डिसीजन है जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिया था उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे उनके सामने 2 रोड्स थे और उन्होंने एक को लिया और उस पे चले जिसपे कि बहुत कम लोग चले थे। डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। फर्स्ट, अ येलो वुड। येलो वुड refers to the forest which has withering leaves as in the season of autumn. It represents a world full of aging people. येलो वुड ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ के मौसम को दिखा रहा है, जिसमें कि क्या होता है, जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं। विदरिंग का मीनिंग होता है मुरझाना। तो एक तरह से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लोगों को जो थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, जो थोड़े उम्र दराज हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। इट मीन्स दैट द पाथ हैड ए लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट। This means that it had not been walked over by many people. It had to be worn out by the steps of the people who walked on it. जो रास्ता है उस पे घासें, जो रास्ता है उस पे बहुत सी घासें हैं। इसका मतलब है कि बहुत लोगों ने उस रास्ते को नहीं चुना है, उस पे नहीं चले हैं, इसलिए जो घासें हैं वो लोगों के पैरों से नहीं कुचलाया है। The passing there.
It means that when he walked over the path that he had chosen. इसका मतलब है जो रास्ता उन्होंने चुना जिस पर वो चल रहे थे. Leaves no step had trodden black. It means that no one had walked over the leaves as they were still green. If they had been walked over, they should have turned black. जो लीव्स हैं यानी कि पत्तियां जो रास्ते पे पड़े हैं उन पर कोई नहीं चला है, वो अभी भी फ्रेश है, ग्रीन है. अगर कोई उन पे चलेगा तो वो ब्लैक हो जाएंगे. How way leads on to way. It means that as we walk on a path, we come across more options and make choices further. We keep on walking ahead on that way. जब हम एक रास्ते पे चलते हैं तो हमारे सामने आगे चलकर और भी बहुत ऑप्शंस आते हैं जहाँ पर हमें फिर चॉइस लेना होता है, डिसीजन लेना होता है. तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं उस रास्ते पर. मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग ये पोएम अच्छे से समझ गए होंगे. थैंक यू.